Today we are with the one of the two students. One is the Prathamesh, other is Yogesh. Now Prathamesh and Yogesh both are friends and both have completed their diploma in mechanical engineering and both are working with the Mahindra company, right? Now what is the difference between one diploma and one normal education? That diploma means I need to make you little some overviews that you have been studied 3 years your engineering papers and subjects, right? Now today we are thinking to become fluent speaker of English, right? So to become a fluent speaker of English, we need to have first the introduction of grammar. See, as I have given you the book that is a fluent spoken English, and there is a one chapter that is the introduction of grammar. So Prathamesh, you can read in English. What is the introduction of grammar? Grammar is the system of language. People sometimes describe grammar as the rules of language, but in fact, no language has rules. If we use the word rules, it suggests that somebody created the rules, but the language did not start like that. Language started by people making sound. All languages changes over time. We call grammar is simply a replication of a language at a particular time. Do we need to study grammar to learn a language? The short answer is no. Many people in the world speak their own native language without having studied its grammar. Children start to speak before even they know the word grammar. But if you are serious about learning foreign language, the long answer is yes. Grammar can help you to learn the language more quickly and more efficiently. It is important to think of grammar as something that can help you like a friend. When you understand the grammar, a system of a language, you can understand many things yourself without having to ask a teacher or look in a book. So think of grammar as something good, something positive, and something that you can use to find your way like a signboard or map. Very good. Prathamesh, now you tell me, whatever you have already spoken in English, आपने जो भी इसको इंग्लिश में पढ़ा है, क्या उसको आपके अपने भाषा में जो आपका मराठी मदर टंग है या हिंदी है उसमें पूरा 100% समझ में आया? No. ठीक है. Now we have one of the another student Yogesh. Yogesh, now you speak in Hindi. The same thing is written in Hindi, so you can speak in Hindi. Yes, I can start. Yes. व्याकरण एक भाषा सीखने का तरीका है. व्यक्ति कभी कभी व्याकरण को भाषा का नियम समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भाषा का कोई नियम नहीं होता है. अगर हम लोग नियम शब्द का उपयोग करते हैं तो यह बताता है कि कोई व्यक्ति पहले नियम बनाया फिर भाषा बोला, जैसा कि किसी नए खेल में होता है. लेकिन भाषा इस तरह से शुरू नहीं हुई थी. भाषा की शुरुआत व्यक्ति के ध्वनि आवाज से हुई है. हर भाषा में समय का परिवर्तन होता है जिसे हम व्याकरण कहते हैं. व्याकरण एक साधारण प्रतिबिंब है भाषा के वास्तविक समय का. क्या हम लोग को व्याकरण सीखने की जरूरत है? छोटा सा उत्तर है नो. दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलते हैं, लेकिन वो लोग कभी कभी व्याकरण नहीं सीखे हैं, फिर भी अपनी मातृभाषा बोलते हैं. बच्चा जब बचपन में भाषा बोलना शुरू करता है तो वो अपनी भाषा बिना व्याकरण से समझ सीखे बोलने लगता है. लेकिन अगर आप कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश बोलना, तो बड़ा उत्तर है हाँ, यस. व्याकरण आपको अंग्रेजी भाषा सीखने में जल्दी और प्रभावी सहायता करता है. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कुछ व्याकरण में सोचें और व्याकरण आपको दोस्त के जैसा महसूस कराएगा. जब आप व्याकरण समझ जाते हैं, जैसा कि भाषा का नियम, तो आप बहुत सारी चीजें खुद से समझ जाते हैं, बिना शिक्षक से पूछे और बिना किताब में देखे. व्याकरण के बारे में आप कुछ अच्छा सोचे, कुछ पॉजिटिव और कुछ इस तरह से जैसे कि आप रास्ते का माप देख रहे हो. Really, it is better. You both have spoken in the different language. You have spoken in English and Yogesh has spoken in Hindi. Now you tell me, आपने जब ये इंग्लिश पढ़ा और जब आपने ये हिंदी भी आपने देखा है, साथ साथ उनके साथ पढ़ा है, सुने हो, तो दोनों में क्या अंतर? जो आपने ऊपर में इंग्लिश पढ़ा
और जब वो पूरा हिंदी पढ़े तो दोनों में समझने में कितना अंतर है? जब हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा तो एक 20-30% मेरे को समझ में आया। इंग्लिश में जब पढ़े तो 20 to 30% समझ में आया, राइट? और हिंदी में जब मैंने पढ़ा, मतलब उनका सुना, तो मेरे को एटलीस्ट 50 to 60% प्रॉपर, मतलब 50 to 60% प्रॉपर समझ में। सिर्फ इससे पहले हमने एक पैराग्राफ पढ़ा जो इंग्लिश में पढ़ा, तब तक हमें 20 to 30% समझ में आया, और इंस्टेंटली हमने उसको हिंदी में पढ़ा तो हमें 60% समझ में आया। और आप ये सोचो कि अगर आपको पूरा इंग्लिश समझ में आ जाए और ये हिंदी समझ में आ जाए तो आपका लाइफ कितना सरल और आसान हो जाएगा। हमारे लाइफ में हुआ क्या है कि हमने ऐसे ही अपनी जिंदगी जी है। जो पिछले 3 साल भी या 4 साल भी आपने पढ़ाई की है, बहुत सारा चीज आपने इंग्लिश में पढ़ा है, या बहुत कुछ नहीं समझ में आया है, 100% नहीं समझ में आया, 20, 30, 40, 50% समझ में आया है, और आप उसका आंसर लिखते आए हो और फिर भी आप अपने आप को यहां तक लेके आए हो। बट यही चीज अगर शुरू से होती थी और आप अगर पूरा इंग्लिश जैसे पढ़ते थे और पूरा अगर समझ में आता था तो लाइफ कितना आसान और सरल हो जाता था। आप कुछ इसके बारे में कह सकते हैं कि जैसे आपने जो अभी तक पढ़ाई किया, अगर वो पूरा इंग्लिश आपको हिंदी में समझ में आता, आपके मराठी लैंग्वेज में समझ में आता, तो आपकी पढ़ाई और कितनी आसान हो जाती थी। आप कुछ कह सकते हैं उसके बारे में? प्रथमेश आप बताइए। अगर ये अंग्रेजी अगर सीख जाती है अगर उस टाइम, तो जब भी ट्रांसलेट करते हैं, आंसर लिखते, तो इट इज इजी टू आंसरिंग एनी क्वेश्चन। वेरी गुड। आप बताइए योगेश, अगर आपको जो आपने 3 साल पढ़ाई की, 4 साल पढ़ाई की, जो आपको इंग्लिश में पढ़ना था, और अगर वो पूरा नहीं समझते थे और अगर वो पूरा समझ जाते थे जो इंग्लिश पढ़ते थे, चाहे आप अपनी भाषा में, चाहे वो मराठी में कन्वर्ट होकर समझ जाते या हिंदी में समझ जाते, तो लाइफ कितना सरल और आसान हो जाता था। डिप्लोमा के बारे में बताए तो कुछ भी 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10 में भी एक सब्जेक्ट था इंग्लिश का। डिप्लोमा में जैसे होता है कि ऑटोमोबाइल जैसा सब्जेक्ट होता है, हाँ। तो उसमें क्या है, मेरे को उसका फंक्शन पता चल गया, हाँ। तो मेरे को जो आंसर राइट करना है, हाँ। तो मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। जब यानी कि मेरे को जब इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है तो मेरे को वो इजी हो जाएगा कि मैं उस, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि रट्टा मार के गया, ये गया, तो वो चीजें नहीं होगी। हाँ। मैं अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। बहुत सारा चीज आप ऐसे लिख के आते थे जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, आप उसको अच्छी तरह से इंग्लिश में आंसर्स को एलेबरेट करके आ जाते थे। आज से ऐसा लाइफ नहीं होगा। आज से हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले स्लोगन है speaknowenglish.com का कि नेवर फॉरगेट इन लाइफ। हम लोग कभी लाइफ टाइम ये भूलेंगे नहीं। दूसरा चीज, हम लोग भाषा को याद नहीं करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम लोग भाषा को याद नहीं करने जा रहे हैं। भाषा कैनॉट बी रिमेम्बर, लैंग्वेज कैनॉट बी रिमेम्बर, लैंग्वेज कैन क्रिएट, लैंग्वेज कैन स्पीक अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. So now we are going to start the introduction of grammar. In the next chapter you can say the introduction of grammar. What is the introduction of grammar? You can go for the next page. You can say it. What is grammar? Now it's a very clear what is grammar, right? Introduction of grammar में क्या है? पहला क्या है? What is grammar? क्या है? What is grammar? Answer. Simple है. Grammar denotes how to listen correctly, how to speak correctly, how to read correctly and how to write correctly. किसी भी भाषा का यही 4 पार्ट होता है: listening, speaking, reading, writing. So grammar corrects these all. Grammar क्या करता है? How to listen correctly, how to speak correctly, how to read correctly and how to write correctly. So the language has their 4 parts and grammar corrects these all, right? Now, how many parts of grammar? Grammar के कितने प्रकार होते हैं? How many parts of grammar? There are 5 parts of grammar. Grammar के कितने parts होते हैं? 5 parts होता है. पहला क्या है? Orthography. दूसरा क्या है? Etymology. तीसरा क्या है? Syntax. चौथा क्या है? Punctuation. और 5वां क्या है? Prosody. अब जो मैं ये इंग्लिश में बोला हूँ 5, ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसी को अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे. ऑर्थोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण विचार. वर्ण यानी अल्फाबेट्स, राइट? अल्फाबेट्स मतलब A to Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, राइट? अब ये तो सबको बोलने आता है. अब मैंने आपको इससे पहले भी एक एग्जांपल दिया हूं. हमने ये क्यों बचपन से बोला ये सीक्वेंस में? बिकॉज हमें ये बोलने आता है. मेरा ऐसा कहना है, चूंकि ये इंग्लिश सिखाने के क्रम में हमें ऐसा लगा कि हम जो बोलते हैं हम वही सीख सकते हैं, तो हम इसको Z के टर्म में भी बोलते हैं. Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B.
अगर हम ए से जेड तक बोल सकते हैं तो हम जेड से ए तक क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि हमने अपने टंग को इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया, हमने इस चीज को इस तरह से बोलने की कोशिश नहीं की। तो अगर हम ए से जेड तक बोल सकते हैं तो मेरा ऐसा मानना है जेड से ए तक भी बोला जा सकता है, लेकिन बचपन से अभी तक हमने इसी क्रम में बोला है। तो आपको एक अच्छी तरह से समझना है, जो हम बोलेंगे वो बोलना सीख जाएंगे। आज एक विश्वास होना चाहिए कि अगर ए से जेड तक कोई बोल सकता है तो जेड से ए तक भी बोल सकता है, बट उस क्रम में हमें सीखने की जरूरत है, राइट। तो पहला क्या है? ऑर्थोग्राफी। और ऑर्थोग्राफी में हम अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण विचार पढ़ते हैं। अल्फाबेट्स मतलब ए टू जेड, राइट। दूसरा क्या है? Etymology. What is etymology? In this part we study about word and words. इसमें हम लोग शब्द और शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, वर्ड and words। तो अल्फाबेट से क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्द। अल्फाबेट्स को जब हम टुगेदर कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। पहला क्या है? पहला है ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम पढ़ते हैं ए टू जेड, और क्या पढ़ते हैं? जेड टू ए। अब ये तो एक्सेप्शनल है, आपको लगता होगा ये जो मास्टर साहब है, ये सर है, ये जेड से ए तक क्यों बार बार मुझे सिखाते हैं। ये हम इसके लिए आपको कहते हैं क्योंकि हमने बचपन से ए टू जेड हमारे ऊपर में क्या कर दिया गया है? ऐसा थोप दिया गया कि आप ए से जेड तक बोलो। अगर हम बचपन में ए से जेड नहीं बोलते और बचपन में हमें सिखाया जाता है जेड से ए बोलो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, अगर इस क्रम में बोलते थे तो हम इस क्रम में भी बोल सकते थे। मैं राइट और रॉन्ग? जैसे अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं अभी पढ़ता हूं, अगर मुझे नहीं आता है, अगर मैं, बहुत बार होता है कि ऐसा लगता है कि ये याद के इसके, अगर मैं सपोज अगर ये मुझे नहीं आता तो मैं लिख सकता हूं जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी। अब मैं लिखता हूं जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल ए जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। हमने कुछ छोड़ा है? आपको लग रहा है? अगर हम यहां से लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ छोड़ा हमने? बराबर है। तो हमारा कहने का एक उद्देश्य है, आज आपको एक उद्देश्य, हम आपको एक लॉजिकल थिंकर बनाना चाहते हैं कि अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखा है तो इसको बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बना देना कि पहाड़ तोड़ना है। दशरथ माझी ने जो पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था माउंटेन में, ऐसा वाला काम नहीं। आप विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ 1 मंथ, विद इन अ 2 मंथ, विद इन अ 3 मंथ आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हो। लेकिन हमें क्या है? हमें जो सीखना है वो बहुत ही टेक्निकली, लॉजिकली सीखना है कि हमें क्या सीखने की जरूरत है। नहीं तो हम फिर वही वो समंदर में घूमते रहेंगे और समंदर के बगल में खड़े रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे? प्यासे रहेंगे। अगर समंदर के बगल में भी खड़े होकर आदमी प्यासा है तो मतलब क्या है? उसको टेक्निक नहीं पता है कि समंदर से पानी कैसे पीना है। समंदर का पानी पीने लायक नहीं होता है। मैं राइट और रॉन्ग? राइट। तो अब क्या है कि अगर मैं ये आपको सिखा रहा हूं, अगर मैं ये चीज बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक मैजिक कर रहा हूं और ये ऐसा क्यों हो गया। मतलब हमने भी इसकी बोलने की सीक्वेंसेस सीखे हैं और ये हमने बहुत साल पहले, हम एक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और वो ऐसे ही मराठी मीडियम में पढ़ के आया था और 10th के बाद डिप्लोमा में आ गया था। तो उसको मैं मैथ्स पढ़ाता था, जो भी पढ़ाता था वो हिंदी में समझाता था, समझ जाता था। फिर वो कुछ इंग्लिश में बोल देता था, समझ में नहीं आता था। तो हमने उसको एक दिन बोला, अरे तुमको ABCD आता है कि नहीं, A to Z आता है कि नहीं? बोला हाँ सर, ये किसको नहीं आता है? मैं बोला क्या तुमको Z से A तक आता है? हमने भी ऐसे ही बोला उसको बोलने टाइम में। तो बच्चा है, मुंबई का बच्चा, बड़ा चैंपियन बच्चा, बोलता सर आपको आता है क्या Z से A तक? बोला आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम 10 मिनट के बाद मैं बता दूंगा तुम्हें। तो वो 10 मिनट के अंदर में, 5 मिनट के अंदर में मैंने Z से A तक बोलना सीख लिया। कितने मिनट के अंदर में? और वो जब आया तो उसको मैंने बताया और वो बच्चा बहुत आगे बढ़ा। फिर बाद में मैंने उसको बहुत सारी इंग्लिश की चीजें सिखाई, क्योंकि मैं उसको मैथ्स पढ़ाता था, इंजीनियरिंग का मैथ्स पढ़ाता था, पूरा बैच में पढ़ाता, 60-70 स्टूडेंट होते थे पूरे बैच में। बट उसको मैंने, हमारे बैच में ऐसा था कि जो मेरा 3 घंटा का फुल टाइम का बैच होता था, जब मैं मैथ्स पढ़ाता था, मैं हर एक बच्चे को ये कह के रखा था कि हमारा बैच होता था 10 to 1, 2 to 5 में होता था, और मैंने ये कह के रखा था कि अगर मैंने आपको 10 to 1 पढ़ाया है और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप रुको और जाने से पहले मेरे से पूछ के जाओ। और मेरा उस टाइम में भी और आज भी जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, इनफैक्ट मैं इंग्लिश भी जो पढ़ाता हूँ, सीखना भी सिखाता हूँ, वो कंप्लीटली 2 भागों में पढ़ाता हूँ। एक L सिखाता हूँ और एक राइट सिखाता हूँ। L में मैं सॉल्यूशन करता हूँ और राइट में हमने सॉल्यूशन कैसे किया इसका कॉन्सेप्ट रखता हूँ। मैं हमेशा मैथ्स को ऐसे ही सिखाया है 2 पार्ट में।
बिकॉज बहुत बार क्या होता है, मैथ्स हम पढ़ते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो जो चीजें लेफ्ट में सिखाते हैं, जो सॉल्यूशन करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैं राइट में रखते जाता हूँ। और इसी तरह से मैं इंग्लिश बोलना भी सिखाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्चुअल सिखाता हूँ, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, आपको उल्टा ABCD सिखाया, Z से A तक बोलना सिखाया। आप बोलोगे ये तो अभी तक सिखाया नहीं, आपने बोला है, हमने थोड़ी बोला है। बट आप एक दिन बोलने लगोगे, आप दोनों को खड़ा करके हम यहाँ पे ऑडियो वीडियो के सामने में बुलवा देंगे और आंख बंद करके बोलोगे। सिंपल टेक्निक है, वो मैं बताऊंगा और इस तरह से बोलना है, आप बोलने लगोगे। अब आपको लगता होगा कि सर ने जब ये बोला तो बीच में हो सकता है कुछ छोड़ दिए होंगे, राइट? तो हमने उसी चीज को अपोजिट लिखा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने कहीं से देखा नहीं है, नकल नहीं किया। तो नकल करके कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता। हम इंग्लिश सीखने के लिए इंस्पायर्ड हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किसी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। सपोज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिस्टर अमिताभ बच्चन स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, राइट? हमें ऐसा है कि हमारे जो इंडिया में सर अमिताभ बच्चन हैं, वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत ही न्यूट्रल इंग्लिश बोलते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सेंट बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हाँ, ही डजंट स्पीक लाइक अमेरिकन और ब्रिटिशर्स, बट जब वो बोलते हैं तो हमें सुनने में अच्छा लगता है एज एन इंडियन, राइट? मैं राइट और रॉन्ग? तो हम वैसा तो नहीं बोल सकते, राइट? लेकिन क्या कर सकते हैं, उनसे हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं, हम उनसे क्या हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो हमें इंग्लिश आगे किस तरह से सीखना है, प्रेरित होके सीखना है। क्या सीखना है? अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूं तो आपको ऐसा नहीं, अगर आप सोचोगे नहीं सर का नकल करना, तो नकल करना मतलब वो शकल चेंज हो जाएगा। नकल नहीं करना। नकल करने से पहले क्या करना, जो लिखा हुआ है, जो हमने वो टेक्निक बताया, उसको सीखना है, ठीक है? और अगर आप वो टेक्निक सीख जाओगे और उसको 10 बार बोलोगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, राइट? तो पहला क्या है, हम यही इसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, राइट? हमने तो आपको नोट्स दिया ही, हमने आपको बुक्स दिया है। और देखो सबसे बड़ी बात है, यही नोट्स, यही बुक्स हम हर एक जगह देते हैं। जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, यही चीज मैं हर एक जगह देता हूं। तो पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्फाबेट्स के बारे में। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, बताइए अभी? दूसरा क्या है, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड के बारे में, वर्ड और वर्ड्स के बारे में। देखो सिंपल सी बात है, एक अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड बनता है और वर्ड्स बनता है। जैसे ए लिखा हुआ है और बच्चे को हम शुरू में पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, तो एप्पल में APPLE, अगर इसमें ये 5 अल्फाबेट्स लग गए, क्या बन गया, वर्ड बन गया। अब तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस और सेंटेंसेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक अल्फाबेट से वर्ड बना और वर्ड से क्या बन गया, सेंटेंस। SENTENCES, सेंटेंस और सेंटेंसेस। अब ये देखिए सेंटेंसेस के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज योगेश। योगेश इज अ गुड स्टूडेंट। इसका अर्थ क्या है, योगेश एक अच्छा लड़का या एक अच्छा स्टूडेंट है। तो इसमें ये YOGESH से एक अल्फाबेट्स था, इससे एक नाम हो गया। अब जब एक वर्ड बन गया, इसमें 2-4 वर्ड्स लगे, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, राइट? क्लियर? अल्फाबेट्स, वर्ड एंड वर्ड्स, सेंटेंस और सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस को आगे कब तक नहीं लिख सकते? अब मैं यहां पे लिखता हूं कि प्रथमेश इज ऑल्सो गुड स्टूडेंट। तो अब प्रथमेश लिखना है, तो यहां पे क्या लगेगा हमें, बोलो? फुल स्टॉप देना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा, राइट? तो ये फुल स्टॉप और कॉमा हम किस में पढ़ते हैं, चौथे पार्ट में पढ़ते हैं। चौथा क्या है, पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन में क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ मार्क के बाद फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, एपिस्ट्रोफी, डैश, स्लैश, एक्सेट्रा, राइट? अब देखो ग्रामर क्या है, अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस। सेंटेंस को कब तक आगे नहीं लिख सकते, जब तक फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाएंगे। और 5वां पार्ट क्या है, स्टेंजा। स्टेंजा, पैराग्राफ। अब ये स्टेंजा पैराग्राफ क्या है, वर्ड से, अल्फाबेट से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, सेंटेंस को हम कैसे आगे लिख सकते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप देके। अब जब इसमें 10, 20, 25, 50 अगर सेंटेंसेस हो गया तो क्या बन गया, एक स्टेंजा बन गया, एक पैराग्राफ बन गया। अब ऐसे जब 5 पैराग्राफ बन गया तो एक स्टोरी बन गया। और ऐसा जब 25 स्टोरी हो गए, 25, 50 स्टोरी हो गए, तो एक बुक बन गया। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर यही है, एक अल्फाबेट से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस,
सेंटेंसेस उसको कैसे आगे लिख सकते हैं, पंक्चुएशन, और उसके आगे कैसे लिख सकते हैं स्टेंजा के बारे में। ना मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमने तो ना तो आपके बुक में कुछ देखा जो हमने आपको बुक दी, ये बुक हमारे द्वारा ही लिखी गई बुक है और हमने ही ये बुक लिखा। तो अगर वो बुक जो लिखा हुआ फिर से मैं अगर यहाँ पे ये लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो आप ये बताइए अभी जो हमने आपको बताया है उसमें कितना समझ में आया आपको? 100%। पूरा 100% समझ में, आपको 100% समझ में आया? यस सर। राइट। अगर यही चीज अगर हम शुरू से 100% समझते रहते तो हमारी लाइफ कितनी इजी और आसान और सरल हो जाता है, राइट। तो हमारी जो इंग्लिश बोलने सिखाने का तरीका है ये ऐसे ही पूरा सरल और आसान होने वाला है, और ऐसे ही होने वाला है कि हम टेक्निकली आपको प्रूफ करेंगे। हो सकता है ये कुछ मैथमेटिकल लगता होगा, राइट, बट हमने ये जो लिखा है किसको समझाने के लिए लिखा है? आपको समझाने के लिए लिखा है। तो हमारे लिए ये पढ़ाना, आपको समझाना, और हमने जो लिखा है अगर आपने वो समझ लिया तो दैट्स इट, राइट। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बीच में जो 4-5 पेजेस है उसे हमें कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट कैसे करना है? नॉट एज अ होमवर्क, एज अ एक्टिविटीज। सो फॉर टुडे वी विल बी ओनली विद दिस फर्स्ट। अगले 1 से 7 दिन हम क्या करने वाले हैं? 1 से अगले 7 लेक्चर क्या करने वाले? हमारे पढ़ने का तरीका क्या है? अगर जो हमने आज पढ़ा है, सपोज हमने फर्स्ट डे जो पढ़ लिया, जब हम कल पढ़ेंगे तो कल क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। जब तीसरे दिन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पढ़ेंगे। चौथे दिन क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ेंगे, राइट। फिर क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पढ़ेंगे, राइट। फिर क्या पढ़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी हमारा कहने का तरीका है हम एक पिरामिड लेवल में पढ़ेंगे कि जो हम पहले दिन पढ़े हैं हम अगले 7 दिन तक पढ़ेंगे। तो आप ये सोचो कि जो हम पहले दिन पढ़े वो अगले 7 दिन तक पढ़ते जा रहे हैं। पहला, फिर पहला दूसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसा नहीं। पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। तो हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं वो कंप्लीट प्योर मेडिटेशनल है, प्रैक्टिकल है एंड क्रिएटिव है। और अगर हम लोग इस तरह से जाएंगे तो हम अपने इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। हाउ यू फील अबाउट योर टुडे द थिंकिंग जो मैंने आपको कुछ मिनट्स में समझाया है वो आपको कैसा लगा समझ के? Basically we can speak English easily. We didn't have to remember the English language. We can speak or we can elaborate with the word. Okay, ठीक है। आपको योगेश how you feel about your thinking? बेसिकली क्या है कि स्टार्ट से एंड तक क्या प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे कि वर्ड्स है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, एक अल्फाबेट से वर्ड्स बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, उसके बाद पंक्चुएशन आता है, यानी कि चिन्हों का उपयोग कैसे करना है, और उसके बाद स्टैंडर्ड यानी कि पैराग्राफ। हमारे बोलने का भी वही तरीका। हम क्या करते हैं, किसी से जाते हैं हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब ओनली स्पीकिंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इज नॉट इंग्लिश, बट व्हेन यू स्पीक हाय गुड मॉर्निंग उसके बाद क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, व्हाट आर डूइंग, वेयर आर यू नाउ, okay now I am here, I am there, right? So what we do, we create a situational sentence. So I really feel good for today and I really thank you very much, and we will go ahead, we will do the practice and we will go ahead with that. Thank you very much.